Good morning, class 9th friends. This is Naren Sharma, your English teacher. Today I am going to take the remaining part of the fourth chapter of your supplementary reader Moments in the Kingdom of Fools. In my lecture number 2, I told you that when the rich merchant was not according, rich merchant's body, especially his neck, was not according to the measurement of the estate. Then the king ordered to go and find out to his messengers a person who is enough to fit the stake. Okay. Now the servants looked for such healthy or fat person whose neck's measurement is according to the measurement of the stack. Okay. So the servants were immediately sent all over the town looking for a man who would fit the stake. And when the servants were searching for such kind of person, their eyes fell on the disciple, okay, who had made himself quite fat by eating bananas, rice, wheat, and ghee. He had become much more healthier. Okay. When the servants got him, he asked to them that what was his crime. Okay, he had done nothing wrong. He is quite innocent. And moreover, he is a sannyasi, he cried. The servant said, it may be true, okay, but we are doing our duty, we are just implementing the royal decree, the order given by the king. Okay. Then the king's order is to find a fat man enough to fit the stake. Okay, the servant said. And they carried the disciple to the king's palace. Later on, he was carried to the place of execution, where he was to be hanged. At that time, the disciple remembered the wise words of his guru. Okay. What did his guru say? He said that this is a city of fools. ये एक मूर्खों का शहर है. You don't know what they will do next. तुम्हें ये पता नहीं है कि इनका अगला कदम क्या होगा, आगे ये क्या करेंगे. Okay. While the disciple was waiting for his death, he prayed to his guru, okay, in his heart. जब वो शिष्य अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहा था तो उसने सच्चे मन से उसके गुरु को याद किया. राइट. अप टू दिस आई हैड कंप्लीटेड yesterday in my second lecture. Now let us take third lecture. Okay. Asking him to hear his cry wherever he was. Now the disciple was praying in his heart to his guru. He was asking him to hear his cry, right, and listen to whatever he was saying. It doesn't matter wherever he was. तो यहाँ दिल से याद करते हुए चेले ने उसके गुरु को कहा कि वो उसकी पुकार को सुने
चाहे जहाँ कहीं भी वो हो। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन ए विज़न। अब गुरु प्रकांड विद्वान थे, वो अपने भूत भविष्य वर्तमान तीनों के बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, तो गुरु ने अपने मन की शक्ति के द्वारा सब कुछ देख लिया। ही हैड मैजिक पावर्स। गुरु के पास जादुई चमत्कारिक शक्तियाँ थी। ही कुड सी फार एंड ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट एंड द पास्ट। उनमें इतनी क्षमता थी कि वो बहुत दूर की वस्तु को भी देख लेते थे। ठीक है, यानी कि भविष्य में होने वाली घटना के बारे में वो देख सकते थे, और साथ ही उनको भूतकाल यानी कि अतीत और वर्तमान काल तो सबको ज्ञात होता ही है, जो कुछ आपके साथ चल रहा है। He arrived at once to save his disciple, as his disciple made an humble request, asking his guru to come and save his life. So, when Guru came to know that his disciple's life was in danger, then he arrived at once टू सेव हिज डिसाइपल। गुरु तुरंत उसके शिष्य को, उसके चेले को बचाने के लिए, ठीक है, वो वहाँ पर पहुँच गया। हु हैड गॉट हिमसेल्फ इनटू ए स्क्रैप। स्क्रैप मीन्स ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन दैट वन हैज़ गॉट इनटू। एक ऐसी मुश्किल भरी स्थिति जिसमें कोई फंस गया है। ठीक है, तो यहाँ उसका जो चेला था वो स्वयं एक भयंकर विपत्ति में, भयंकर मुश्किल में फंस गया था थ्रू लव ऑफ फूड। भोजन के प्रति उसके मन में अत्यधिक स्नेह, अत्यधिक प्यार होने के कारण, राइट। यानी कि वो एक पेटू किस्म का व्यक्ति था, खाने पीने का विशेष शौकीन। एज सुन एज ही अराइव्ड ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर। तो जैसे ही यहाँ पर गुरु अपने शिष्य के पास पहुँचा तो ही स्कॉल्डेड द डिसाइपल, पहुँचते ही उसने उसके चेले को डांटना प्रारंभ किया। स्कॉल्डेड यानी डांटना। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन ए विस्पर, और उसके कान में कानाफूसी करते हुए धीमी आवाज़ में उसने कुछ बात कही। विस्पर मीन्स टू स्पीक इन ए लो वॉइस बाय गेटिंग नियरर टू द ईयर। ओके, देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस। फिर गुरु राजा के पास गए और राजा के पास जाकर गुरु ने उनको संबोधित करते हुए कहा, राइट, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हु इज़ ग्रेटर, द गुरु और द डिसाइपल। हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा, कौन महान है? एक गुरु महान है या उसका शिष्य या उसका चेला? ऑफ कोर्स द गुरु, नो डाउट अबाउट इट। वास्तव में एक गुरु महान होता है और इस बारे में कोई संदेह की बात भी नहीं है। वाई डू यू आस्क? आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरु ने राजा से कहा कि राजा, यदि आप ये बात मानते हैं कि गुरु ज़्यादा महान होता है चेले से, ठीक है, तो जब राजा ने ये पूछा गुरु से कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, तो यहाँ राजा ने उत्तर के रूप में कहा कि फिर आप पहले मुझे
फांसी के फंदे पर चढ़ा दें। और पुट माई डिसाइपल टू डेथ आफ्टर मी, और मेरे शिष्य को आप मेरे बाद फांसी पर चढ़ाकर मृत्युदंड देना, पहले मुझे चढ़ा दें। When the disciple heard this, he understood and began to clamor. Clamor means make a loud noise. Clamor means make a loud noise. तेज आवाज करना। जब चेले ने गुरु के शब्द सुने कि गुरु कह रहा है कि पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो ही अंडरस्टूड, अब चेला समझ तो गया, क्योंकि गुरु ने आते ही ये बात उसके कान में कही थी कि अपन दोनों जो है फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए कि संघर्ष करेंगे या ये आग्रह करेंगे कि पहले मुझे चढ़ाया जाए। गुरु कहेगा मुझे, चेला कहेगा मुझे। तो राजा के मन में कोई शक की बात आएगी, वो पूछेगा कि क्या कारण है, गुरु क्यों चढ़ना चाह रहा है। तो फिर वो राजा को विस्तार से बताएगा कि ये न्याय की देवी का फांसी का फंदा है, और इस फंदे पर चूँकि अभी तक कोई अपराधी को नहीं लटकाया गया है, तो निश्चित रूप से जो पहला व्यक्ति जो इस फंदे पर लटकाया जाएगा वो अगले जन्म में इस मूर्खों के राज्य का, है ना, राजा बनेगा, और दूसरे नंबर पे जो लटकाया जाएगा वो मंत्री बनेगा। राइट। When the disciple heard this, जब चेले ने गुरु की इस बात को सुना कि गुरु कह रहा है कि मुझे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, he understood and began to clamor, तो चेला समझ गया और उसने तेज आवाज़ में शोर करना प्रारंभ कर दिया। मी फर्स्ट, पहले मुझे। यू ब्रॉट मी हियर फर्स्ट, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, नॉट हिम। ठीक है, चेले ने कहा कि आप पहले मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाएं, आप पहले मुझे यहाँ पर लेकर आए तो पहले मुझे मृत्युदंड दिया जाए, नॉट हिम, मेरे गुरु को नहीं। द गुरु एंड द डिसाइपल नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। अब गुरु और चेले में झगड़ा प्रारंभ हो गया कि कौन जो है पहले फांसी के फंदे पर मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त करेगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर। राजा चेले और गुरु का इस प्रकार का विचित्र व्यवहार देखकर परेशान हो गया। ही आस्क्ड द गुरु, अब राजा ने गुरु से पूछा, वाई डू यू वांट टू डाई? गुरु जी आप मुझे ये बताओ कि आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चूज़ हिम बिकॉज ही नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टेक। हमने आपके चेले का चुनाव इसलिए किया क्योंकि हमें आवश्यकता थी एक मोटे व्यक्ति की इस फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए, विशेष रूप से ऐसा मोटा व्यक्ति जिसके गर्दन का आकार जो है इस फांसी के फंदे के आकार के मेजरमेंट के अनुरूप हो। ओके, यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। अब गुरु ने राजा से कहा कि महाराज आपको मुझसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, पहले आप मुझे मृत्युदंड दे दें, फांसी के फंदे पर चढ़ा दें। रिप्लाइड द गुरु, गुरु ने उत्तर दिया, वाई? देयर इज सम मिस्ट्री हियर, एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। अब राजा ने गुरु से प्रश्न किया, क्यों, मैं क्यों तुम्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाऊँ जबकि तुम्हारे द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। ठीक है, तो यहाँ राजा को लगा कि जरूर इसमें कुछ रहस्यपूर्ण बात है। देयर इज सम मिस्ट्री हियर। मिस्ट्री मीन्स समथिंग विच इज अनेबल टू अंडरस्टैंड। ऐसी कोई बात जो रहस्यपूर्ण हो, आपके समझ में नहीं आ रही हो। तो देयर इज सम मिस्ट्री हियर,
यहाँ राजा को लगा कि गुरु जो कह रहा है इस बात में कोई रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में राजा कह रहा है गुरु से, आप मुझे इस बात को समझाएं कि आप पहले क्यों फांसी के फंदे पर झूलना चाहते हैं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू। अब गुरु ने राजा से कहा कि हे राजन, क्या आप मुझसे वादा करते हैं कि आप मुझे मृत्युदंड दे देंगे यदि मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। आस्क्ड द गुरु, गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलम वर्ड्स। सोलम वर्ड्स मीन्स प्रतिज्ञाबद्ध शब्द। जिस काम को करने के लिए आप वचनबद्ध हैं, आपने प्रतिज्ञा ली हुई है, सोलम वर्ड्स। तो राजा ने अपनी प्रतिज्ञा या शपथ लेते हुए इस शब्द को कहा, ठीक है, कि यदि आप मुझे बताओगे कि फांसी के फंदे पर पहले आपके झूलने का क्या कारण है, तो निश्चित रूप से मैं आपको पहले फांसी के फंदे पर लटकाने का आदेश दे दूंगा। ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध शब्द राजा ने गुरु से कहे, प्रॉमिस करते हुए, वादा करते हुए। द गुरु टुक हिम असाइड आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट। ईयर शॉट मीन्स आउट ऑफ हियरिंग रेंज, सुनने की सीमा से बाहर, ईयर शॉट। तो गुरु राजा को एक तरफ ले गया। राजा के सेवक गुरु द्वारा राजा को कही गई बात को सुनने की रेंज से वो दूर ले गया। एंड विस्पर टू हिम, और गुरु ने राजा को धीमी आवाज़ में फुसफुसाते हुए कहा, ठीक है, गुरु जस्ट टुक किंग टू some distant area where the servant of the king couldn't hear what they were talking about. Okay. Do you know why we want to die right now? गुरु ने राजा से कहा कि क्या आप जानना चाहते हैं कि हम अभी क्यों मरना चाहते हैं, इस फांसी के फंदे पर क्यों लटकना चाहते हैं। वी ये स्टैंड्स फॉर गुरु एंड हिज डिसाइपल। वी का तात्पर्य गुरु और उसके चेले से। द टू ऑफ अस, यानी कि हम दोनों ही। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू। तो गुरु ने कहा राजा से कि हमने लगभग संपूर्ण संसार की यात्रा की है, हम सारी दुनिया में घूमे, लेकिन हमने आपके शहर जैसा शहर हमें कहीं भी नहीं मिला और आपके जैसा राजा भी हमें किसी राज्य में देखने को नहीं मिला। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस। ये जो फांसी का फंदा है ये न्याय के देवता का फंदा है, ठीक है। इट इज़ न्यू, ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, और इस फांसी के फंदे पर आज तक किसी अपराधी को नहीं चढ़ाया गया, ठीक है। हु एवर डाइज ऑन इट फर्स्ट will be reborn as the king of this country। जो कोई भी यहाँ इस फांसी के फंदे पर पहले चढ़ाया जाएगा उसी का पुनर्जन्म इस देश के राजा के रूप में होगा, यानी कि वही व्यक्ति अपने अगले जन्म में इस मूर्खों के राज्य का राजा बनकर जन्म लेगा, राइट।
तो यहाँ गुरु ने कहा राजा से कि ये न्याय की देवी का फांसी का फंदा है, राइट। आज से पहले किसी अपराधी को इस पर नहीं चढ़ाया गया, और चूंकि ये गॉड ऑफ जस्टिस का स्टेक है, तो निश्चित रूप से पहला व्यक्ति जो भी इस पर फांसी देने के लिए चढ़ाया जाएगा वो इस राज्य का राजा बनेगा, और दूसरा व्यक्ति जो चढ़ाया जाएगा वो उस राज्य का मंत्री बनेगा। ओके, एंड whoever goes next will be the future minister of this country। और जो कोई भी पहले व्यक्ति के बाद दूसरे नंबर पर, यानी कि सपोज करो गुरु को पैसे पहले चढ़ाया गया तो गुरु तो राजा बनेगा, और उसके चेले को चढ़ाया गया तो उस राज्य का वो मंत्री के रूप में पुनर्जन्म लेगा, राइट। सो whoever goes next will be the future minister of this country। जो कोई भी अगला व्यक्ति चढ़ाया जाएगा वो भविष्य का मंत्री बनेगा इस देश का। We are sick of our ascetic life। Ascetic means the life of monks and sadhu sannyasis। Okay, ascetic life means monks life, साधु सन्यासियों का जीवन। तो यहाँ गुरु ने कहा कि मैं और मेरा चेला दोनों एक साधु सन्यासियों का जीवन जीते जीते तंग आ चुके हैं। सिख का मतलब यहाँ तंग आना। इट वुड बी नाइस टू एन्जॉय आवर सेल्व्स एज किंग एंड मिनिस्टर्स फॉर ए वाइल। ये हमारे लिए अच्छा रहेगा कि हम जो है राजा और मंत्री के रूप में आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें, चाहे वो थोड़े समय के लिए ही हो। नाउ कीप योर वर्ड माई लॉर्ड एंड पुट अस टू डेथ, मी फर्स्ट रिमेंबर। अब महाराज आप अपने द्वारा दिए गए वचन की पालना करें और मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ाकर मृत्युदंड दें। मी फर्स्ट रिमेंबर, इस बात को याद रखना कि आपको पहले मुझे यानी कि गुरु को फांसी के फंदे पर चढ़ाने का आदेश देना है। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट। अब गुरु की ये बात सुनकर राजा गहरे सोच में डूब गया। ओके, ही डिडंट वांट to lose the kingdom to someone else in the next round of life। राजा ये नहीं चाहता था कि वो अपना राज्य खो दे और उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति राजा बने, यानी कि नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ मीन्स व्हेन आफ्टर डेथ ही विल टेक बर्थ। So he wanted to reborn as the king of the kingdom of fools। Okay, तो वो इस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था कि इस मूर्खों के राज्य का उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति अगले जन्म में राजा बने, राइट। नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ मीन्स अगला जन्म। ही नीडेड टाइम, राजा को सोचने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि ये जो फांसी पर चढ़ाने का जो कार्यक्रम है इसको अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। पोस्टपोन यानी स्थगित करना। एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद हिज मिनिस्टर, और कल तक के लिए फांसी स्थगित करने के बाद राजा ने इस विषय पर जो है उसके मंत्री से गुप्त रूप से बातचीत की। सीक्रेट यानी गुप्त तरीके से। इट इज़ नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। राजा ने कहा मंत्री से कि ये हमारे लिए
ठीक नहीं होगा कि हम हमारे राज्य का शासन अगले जन्म में किसी और दूसरे व्यक्ति को दे दें. Let's go on the stake ourselves and we will be reborn as king and ministers again. राजा ने मंत्री से कहा कि चलो हम स्वयं दोनों इस फांसी के फंदे पर मृत्युदंड की सज़ा प्राप्त कर लेते हैं, जिससे कि मैं तो अगले जन्म में राजा और तुम मेरे मंत्री के रूप में जन्म लोगे. हॉली मैन डू नॉट टेल लाइज, ही सेड. तो राजा ने कहा कि जो पवित्र धार्मिक साधु सन्यासी व्यक्ति होते हैं वो कभी भी झूठ नहीं बोलते. ओके, लाई मीन्स झूठ. एंड द मिनिस्टर एग्रीड. अब वो मंत्री जो था राजा का, वो भी ये चाहता था कि अगले जन्म में वो इस राज्य का मंत्री बने. तो प्रसन्नतापूर्वक वो इस बात के लिए सहमत हो गया. ठीक है महाराज, आप जैसा कह रहे हैं उसको मैं स्वीकार करता हूँ. सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट. इसलिए राजा ने फांसी देने वाले कर्मचारियों को कहा, ये फांसी देने वाले जो जल्लाद थे, एग्जीक्यूशनर्स यानी जल्लाद, उनको कहा विल सेंड द क्रिमिनल टुनाइट. वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट, यानी कि आज रात को हम अपराधियों को मृत्युदंड की सज़ा के लिए भेजेंगे. When the first man comes to you, put him to death first. जैसे ही पहला व्यक्ति आपके पास पहुँचे, आपको पहले उसे मृत्युदंड देना है. राइट. देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन. और फिर इसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति जो आपके पास पहुँचे उसको भी उसी तरह मृत्युदंड देना है. दोज आर माई ऑर्डर्स. ये मेरे आदेश हैं, यानी कि ये राजकीय आदेश है, राजा का आदेश है. डोंट मेक एनी मिस्टेक. राजा ने एग्जीक्यूशनर्स को कहा, जल्लादों को कहा कि किसी प्रकार की कोई गलती मत करना. जैसे ही पहला व्यक्ति पहुँचे उसे फांसी के फंदे पर लटका देना. उसके तत्काल बाद जब दूसरा व्यक्ति पहुँचे उसे भी फांसी के फंदे पर लटका देना और गलतियाँ मत करना. That night the king and his minister went secretly to the prison. उस रात को राजा और उसका मंत्री जो है गुप्त तरीके से छुपते छुपाते हुए जेल में यानी कि प्रिजन कैद खाने में पहुँचे, जहाँ पर गुरु और चेले को रखा गया था. रिलीज द गुरु एंड द डिसाइपल. और वहाँ पहुँचने के बाद राजा और मंत्री ने क्या करा, सबसे पहले गुरु और उसके चेले को रिहा कर दिया, आज़ाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया. डिस्गाइज देमसेल्व्स एज द टू. डिस्गाइज का मतलब टू एज्यूम द फॉर्म ऑफ, वेश बदलना. ठीक है. तो गुरु और उसके चेले ने राजा और मंत्री का वेश धारण कर लिया. एंड एज अरेंज्ड beforehand with loyal servants were taken to the stake and promptly executed. और जैसे कि पहले ही व्यवस्था की जा चुकी थी, वो अपने वफादार सेवकों के साथ राजा और मंत्री जल्लाद के पास पहुँचे. चूँकि उन्होंने गुरु और चेले का वेश धारण किया हुआ था तो जल्लाद उन्हें पहचान नहीं पाया, तो उनको फांसी के फंदे के पास ले जाया गया और तत्काल उनको फांसी के फंदे पर तुरंत चढ़ा दिया गया. राइट. When the bodies were taken down to be thrown to crows and vultures, the people panicked. वल्चर्स यानी गिद्ध,
और पैनिक का मतलब डरना या भयग्रस्त होना। तो जब राजा और मंत्री की लाशों को ले जाया गया कौवों और गिद्धों के सामने फेंकने के लिए, ताकि गिद्ध नोच नोच कर उनका मांस खा जाएं, तो मूर्खों के राज्य की जो जनता थी वो भयग्रस्त हो गई, डर गई। दे सॉ बिफोर देम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर। उन्होंने अपनी आँखों के सामने उस मूर्खों के राज्य की जनता ने अपनी आँखों के सामने उनके राजा और मंत्री की लाशों को देखा। राइट, द सिटी वाज इन कन्फ्यूज़न। सारे शहर में एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हो गई। एट नाइट दे मोर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम। मोर्न का मतलब टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ सॉरो, शोक प्रकट करना। मोर्न यानी शोक प्रकट करना। सारी रात मूर्खों के राज्य की जनता ने शोक प्रकट किया एंड डिस्कस द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, और मूर्खों के राज्य के भविष्य के बारे में विचार विमर्श किया। Some people suddenly thought of the guru and the disciple and caught up with them as they were preparing to leave town unnoticed. ठीक है, तो कुछ लोगों ने अचानक सोचा गुरु और उसके चेले के बारे में, राइट, जो कि तैयारियां कर रहे थे बिना किसी के देखे हुए, चुपचाप जो है वहाँ से निकल कर चले जाने के लिए। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर सेड समवन। मूर्खों के राज्य की जनता में से किसी व्यक्ति ने कहा कि हम लोगों को एक राजा और एक मंत्री की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे राजा और मंत्री तो मर गए। राइट, अदर्स एग्रीड। दूसरे लोग थे वो उस व्यक्ति की बात से सहमत हो गए। दे बैग्ड द गुरु एंड द डिसाइपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर्स। तो उन्होंने प्रार्थना की। बैग मीन्स टू मेक एन हम्बल रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना, गुजारिश करना। तो मूर्खों के राज्य की जनता ने गुजारिश की गुरु और उसके चेले से कि वो उनके राजा और मंत्री बन जाएं। इट डिडंट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स टू परसुएड द डिसाइपल। ज़्यादा तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ठीक है, कि चेले को और गुरु को। चेले को तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी इस बात के लिए आग्रह करने की, बट इट टुक लॉन्गर टू परसुएड द गुरु। लेकिन गुरु को इस बात के लिए मनाने के लिए कि वो मूर्खों के राज्य का राजा बन जाए थोड़ा अधिक समय लगा। दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। अंत में गुरु और चेला दोनों सहमत हो गए मूर्खों के राज्य पर शासन करने के लिए राजा के रूप में, ठीक है, और यानी कि उनके मूर्ख राजा और मूर्ख मंत्री के स्थान पर गुरु और चेले दोनों राजा और मंत्री बनने के लिए सहमत हो गए। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। दे पुट वन कंडीशन दैट ऑल द ओल्ड लॉज विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दैम। उन्होंने शर्त ये रखी कि मूर्खों के राज्य के जितने भी पुराने कानून हैं, विशेष रूप से रात को दिन मानना, दिन को रात मानना, सभी चीज़ों की कीमत एक समान, सिंगल दुद्दू, राइट, इन सब को बदल देंगे। ओके, फ्रॉम देन ऑन नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। उस दिन के बाद से जो है रात को दोबारा से रात माना जाने लगा और दिन को
जो है दिन की तरह दिन के जो कार्य हैं वो किए जाने लगे। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ए दुद्दू, और एक दुद्दू में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था। इट बिकेम लाइक एनी अदर प्लेस, तो ये मूर्खों का राज्य भी किसी दूसरे अन्य स्थान या दूसरे राज्य के समान जो है हो गया। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस इंटरेस्टिंग चैप्टर। नाउ I will send you question answers of this chapter in PDF. Thank you very much. Okay, go through the chapter.